why you could not pass in December 2025 exams. You must be thinking, my friends are passing, everyone is passing, this time results were also good, by why I couldn't clear. Guys, take this as a motivating session, a very short session for all the students, those who couldn't clear exams. See, exams will never decide whether you will be successful in future or not, but your attitude will decide. You couldn't clear this time. Might be you will take one more attempt to clear this examination in June 2026. Someone who has cleared in December 2025 might not have cleared if he would have thought this in June 2025 attempt also. Because several attempts might be there for any student to clear the examinations. So my point is, we need to bounce back. We need to sit now, we need to analyze what exactly went wrong. First of all, we need to take blame on us, right? We need to take blame on us. We need to take the issues, whatever problems occurred, we need to analyze ki what exactly went wrong. We need to analyze that. And for that, you need to sit, you need to introspect, you need to sit with a pen and paper, remove all the things which happened, during the past, and whatever is going to come in future, you just need to plan that. And we are there to help you, don't worry. First of all, you need to ask yourself whether you did adequate practice. Whether you did adequate practice before exams. Whether your writing practice was there. Whether your writing practice was sufficient for you to write or express yourself in the exams. That is very important. Sometimes students feels that doing the classes, everything is fine. Classes हो गया, हम लोग कर लिए, revision कर लिए, हो गया. Practice is not important. If you are thinking like this, then definitely there is an issue. You have to do adequate practice. If you are not doing adequate practice, I mean to say this is the first and the foremost thing you should first of all improvise upon. You need to write the questions. And for that you need to have a sufficient time. You need to have sufficient plan. Then comes over dependency on trend. There are very lot of students, those who just see past term papers, trend analysis. This is what comes, this is what has come. Selective study की आदत सी हो गई आप सबको, which is very very wrong. क्यों करना है यार selective study? एक professional examination है, professional की तरह लीजिए. If you are not taking this as a professional examination, you do not deserve this examination. You do not deserve to be a CMA or CMA finalist. Let me be very very upfront. If you are still doing, selective study at this juncture, something is wrong. You need to understand that I can't just do trend, I can't just be dependent on the trend analysis. Institute can change the trend, they can do the MCQ part difficult, or they can do the subjective part difficult. Anything can happen, right? So you need to be prepared for all, you need to be prepared for everything. Anything can come from anywhere. Then comes lack of adequate revision. ये तो मैं हमेशा बोलते रहता हूं. अगर आप क्लासेस टाइमली कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास मिनिमम 2 से 3 बार अगर रिवीजन करने का टाइम है. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी जो रिमेम्बरेंस है वो वीक हो जाएगी. यू नीड टू रिटेन द प्रोविजंस, यू नीड टू रिटेन वॉट एवर यू हैव थॉट अपॉन. अगर आप क्लासेस पे क्लासेस कर रहे हो और आपके माइंड में कुछ जा नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, आपको रिवीजन देना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू नीड टू गिव टाइम. और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन आपको एक बार पूरा डिटेल मटेरियल से करना है. उसके बाद आपको रिवीजन जो करना है कलरफुल चार्ट बुक से करना है, या फिर आपको अपने नोट से करना है, इंस्टीट्यूट के मैथ से करना है, अपने मटेरियल से करना है, टीचर के मटेरियल से करना है. आप ऐसे रिवीजन नहीं कर सकते हैं कि सर वहां बस देख लिया, मैथ से रिवीजन कर लिया, हो गया. बिना देखे कि आपको याद हो रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट, आर यू एबल टू रिमेंबर दैट? आर यू एबल टू सी, हाँ, कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मेरे से बन रहे हैं क्या क्वेश्चन? क्या आप खुद टेस्ट किया अपने आप को बिफोर द इंस्टीट्यूट टेस्ट यू? नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. वाई गाइज, वाई? जब हम लोग फ्री में मॉक टेस्ट, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, फ्री में मॉक टेस्ट पेपर दिया जाता है, आपको सजेस्टेड आंसर दिया जाता है, एक टाइमिंग बांध दिया जाता है, उस टाइमिंग में क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है, आपको आंसर शीट दी जाती है, एवरीथिंग इज देयर. जब रिसोर्सेज है तो उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? Not giving 2 से 3 mock tests is definitely a blunder which you people are doing.
तो 2 से 3 मॉक टेस्ट कम से कम आपको देना चाहिए। आपको हैबिट नहीं रहेगा लिखने का, आपको हैबिट नहीं रहेगा दैट 3 आवर्स का प्रॉपर एग्जाम एनवायरमेंट, यू नीड टू हैव दैट। 2-3 मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं हर सब्जेक्ट का, बिकॉज इफ यू गिव 2-3 मॉक टेस्ट, फर्स्ट मॉक टेस्ट डिड नॉट गो वेल, सेकंड मॉक टेस्ट दीजिए, सेकंड मॉक टेस्ट डिड नॉट गो वेल और थर्ड मॉक टेस्ट दीजिए, बेटर होते जाएगा एवरी मॉक टेस्ट, एंड बाय द टाइम व्हेन यू गिव योर फाइनल एग्जाम्स यू विल बी थॉरो। Time management is very very important. Time management during exams, during pre-exam month. जून में एग्जाम है तो मई को आप किस तरह से यूज कर रहे हो, दिसंबर का एग्जाम है तो नवंबर को आप कैसे यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे जो ट्रेंड एनालिसिस है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बेसिक चीज भूल रहे हो, और बेसिक चीज बोल रहे हो आप टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीख पा रहे हो, एग्जामिनेशन को कैसे हैंडल करना एक अलग बॉल गेम है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एग्जामिनेशन के प्रेशर को, एग्जामिनेशन, यही मेरा लास्ट पॉइंट है कि एग्जाम्स के प्रेशर को हैंडल करना एक अलग टास्क है, उसको अलग स्ट्रैटेजी लगा के मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, टाइम मैनेजमेंट वाइल राइटिंग एग्जाम्स। इस बार डायरेक्ट टैक्स का पेपर, फाइनल डीटी का पेपर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ बॉक्स सेट किया तो स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत एवरेज आया फाइनल डीटी में। क्यों आया? क्योंकि सर एक्सपेक्टेशन था कि टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, सर एक्सपेक्टेशन था कि पीजीबीपी आएगा, सर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था कि सर चैरिटेबल ट्रस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगेंस्ट द ट्रेंड गया पेपर, तो स्टूडेंट का देखो क्या हाल हो गया। तो गाइज मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, प्लीज बाउंस बैक करें और अच्छे से एकदम शिद्दत से पढ़ाई करने बैठे। देयर इज नो शॉर्टकट, वरना ये शॉर्टकट आपका वे को लॉन्ग कट बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका कट लॉन्ग कट बन जाएगा सर। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि मेरे को अच्छे से अपना 100% प्रिपरेशन करना है और वो मैं प्रिपरेशन करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये तभी हो सकता है जब आप हैंडल करोगे प्रेशर अच्छे से एग्जाम्स के बीच में, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, आप 2 से 3 मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन एडुकेट करेंगे, प्रैक्टिस एडुकेट करेंगे, आपका ट्रेंड का ओवर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। प्लीज मत सोचिए कि आप पास होंगे फेल होंगे, यू गिव योर बेस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू गिव योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन गॉड। कुछ उनके ऊपर भी छोड़िए, वो भी आपके लिए कुछ सोच के रखे हैं। 100% बेस्ट दीजिए। यू हैव नॉट क्लियर दिस अटेम्प्ट बट डेफिनेटली यू कैन बाउंस बैक इन जून 2026। डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज अ फेलियर, just consider that you need one more attempt to pass your examination. Only that student fails मेरे हिसाब से जिन्होंने क्विट कर दिया, जो अब अटेम्प्ट नहीं देना चाहते हैं, खाली वही एक फेलियर माना जा सकता है। ऑब्वियसली वहां पे भी देखा जाता है कि उनका क्या रिजर्वेशंस है, बट हाँ अगर आप वापस अटेम्प्ट दे रहे हो, आप फेल नहीं हुए, यू आर जस्ट टेकिंग वन मोर अटेम्प्ट टू पास। दैट्स इट गाइज। मैं इंटरमीडिएट में फाइनल में DTIDD पढ़ाता हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगा। और यूट्यूब पे आप लोग के लिए बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, रिवीजन सेशंस आएंगे, मैराथन्स आएंगे। सारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे लिए दिसंबर 25 के लिए क्रिएटेड है। बहुत जल्दी जून 2026 के अमेंडमेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे दिखेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो जरूर कॉमेंट करिएगा और शेयर करेगा ये वीडियो, शेयर करेगा हमारे बारे में, चैनल्स के बारे में विद ऑल योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड फॉलो।